Namaste and a very good evening to all esteemed members, fellow chartered accountants, joining us today for another enriching session of Golden Chacha. I'm CA Rashi Santhalia and I have the privilege of coordinating today's session. Golden Chacha has truly emerged as a golden initiative by EIRC of ICI, bringing cutting-edge knowledge directly to our streets. This initiative reflects our commitment to continuous professional development and ensuring that every member of our fraternity stays equipped with the latest tools and techniques. Before we proceed, I would like to express a heartfelt gratitude to CA Vishnu Kumar Kalsyan, our dynamic chairman of EIRC, whose visionary leadership and commitment towards professional excellence has made initiatives like Golden Charcha possible. So, our today's topic is Your Signature Speaks Power of the Subconscious Mind. And our speaker for today is Rupi Jain. She is a compassionate and insightful graphologist, handwriting, and signature analyst with a unique background as a chartered accountant and certified financial planner. Rupi brings a distinct analytical perspective to her work. Her journey into graphology was driven by a passion to help people unlock their true potential and transform their lives. With 5 years of dedicated practice, UP has empowered numerous various individuals to gain a deeper understanding of themselves and others. Her mantra, change begins with oneself, reflects her commitment to inspiring positive growth and self awareness. Through her work, Rupi aims to create a ripple effect of positive change in the world, one people at a time. She loves to play poker and cycling. Her she's an associate partner at Nirvana Lives Institute, a premier training and coaching institute based in Kolkata. And also, she's also an associate partner at Kagas, a premier concept based stationery line that designs and conceptualizes products to meet various corporate and personal needs. Over to you, ma'am. Thank you, Rashi, and thank you, EIRC team and Vishnu Bhaiya for inviting me today. So I can see the participant number are less, but jitne bhi hain, we will have fun. Next till 5 o'clock, we are going to learn something new skills. I hope you guys are excited. I can't see you guys. I'll keep asking questions. Please chat में आप लोग answers लिखते रहिएगा. Otherwise, it's only me talking to blank screen और मुझे भी मजा नहीं आएगा, हाँ? So, are you guys excited? पहले इसका आंसर लिखिए. I can see Bhavesh, Prem, Sumit, Uma, Shankar, Chatterjee. There are 4 participants. Are you guys excited? I got 1 yes. And where are other people? See, आप लोगों को सीखना है ना, संडे का दिन है, 4 o'clock. हाँ, आप लोग सब आए हो, सिर्फ क्या एक कान में लगा लिया है और सब सो रहे हैं मजे से और मैं सिर्फ बोल रही हूँ, ऐसा तो नहीं होगा ना. सो लेट्स स्टार्ट. आज का हमारा टॉपिक 2 पार्ट में डिवाइडेड है. एक है पावर ऑफ योर सिग्नेचर एंड पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड. ये दिखने में ये 2 पार्ट है, लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है उसी के हिसाब से हमारा सिग्नेचर फॉर्म होता है. सो आई होप आप सब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और हम सब ना ऑडिट रिपोर्ट साइन करते हैं, जीएसटी सर्टिफिकेट साइन करते हैं, और भी बहुत सारे सर्टिफिकेट साइन करते हैं ना. यस नो. सो आई गिव यू वन एग्जाम्पल. अगर फॉर एग्जाम्पल आप ने ऑडिट रिपोर्ट बनाया और ऑडिट रिपोर्ट में लेफ्ट साइड में वो जहाँ होता है ना सिग्नेचर फॉर कंपनी फर्म एंड वहां नीचे पार्टनर का नाम लिखा होता है और वहां साइन करना होता है, आपने वहां पे साइन नहीं की और बिना साइन किए आप वो पेपर लेकर के खड़े हो गए कि ये दिस इज ऑडिटेड बाय मी. विल दैट पेपर, विल दैट ऑडिटेड बैलेंस शीट विल हैव एनी वैल्यू? कुछ वैल्यू होगा उसका? आई वॉन्ट आंसर्स फ्रॉम अटेंडीज. राशि का आंसर तो मुझे मिला है. नहीं होगा ना, राइट. सो क्यों नहीं होगा? आप खुद तो खड़े हो और आपने ही ऑडिट किए, लेकिन आपसे ज्यादा वैल्यू आपके साइन की है, राइट. सो सीए के साइन की तो ऐसे भी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, और अगर यही साइन
प्रोफिशिएंटली हो, यही साइन अगर आप माइंडफुली करो और यही साइन ये समझ के करो कि ये आपका पब्लिक इमेज है, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें कितना वेटेज और बढ़ जाता है। ऑलरेडी सीए के साइन में वेटेज है और सीए के साइन की वेटेज के साथ साथ इसके मीनिंग की भी वेटेज अगर बढ़ जाए तो। आप लोगों ने कभी सुना है सिग्नेचर एनालिसिस के बारे में, ग्राफोलॉजी के बारे में? राशि, आप सबको अनम्यूट कर सकते हो क्या, सो वी कैन हैव कॉन्वर्सेशन। श्योर, मैं उनको वो कर देती हूँ, पावर टू स्पीक मैं दे देती हूँ। हम्म, दिस इज गुड, दिस इज मच बेटर। मतलब आप लोग भी वीडियो ऑन कर लो ना, वीडियो ऑडियो ऑन कर लो, वी विल हैव गुड डिस्कशन। छोटा नंबर है, अच्छा फायदा मिलेगा आप लोग सबको। So I have given them the authority to speak, so they can just unmute themselves. थैंक यू। ओके, सो जो हमारा सिग्नेचर है वो हम है, इट इज आवर पब्लिक इमेज। सो आप लोग के पास पेन एंड पेपर है? पेन एंड पेपर, प्लेन पेपर, ब्लू कलर बॉल पेन, अगर आप लोगों के पास है तो बढ़िया है, नहीं तो लेकर के आ जाइए। मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी बताऊंगी टुवर्ड्स एंड ऑफ द सेशन, ताकि आप अपने हैंडराइटिंग और अपने सिग्नेचर को देख करके उसको ठीक कर सको। सो आवर सिग्नेचर इज आवर माइंड नेचर, ठीक है। जब भी हमारे बॉडी का कोई भी मसल कोई एक्शन परफॉर्म करता है, दैट मीन्स व्हेन वी आर होल्डिंग द पेन एंड साइनिंग, इस तरीके से हम साइन कर रहे हैं, तो जो हमारा ब्रेन है ना, वो ब्रेन सिग्नल भेजता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस। वो कभी देखा है वो इमेजेस, वो गूगल में रहता है काफी, कि ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक लाइंस होती है जो यहाँ से जा रही होती है थ्रू आवर नर्वस सिस्टम। और यही जो इम्पल्स ओरिजिनेट होता है ना ब्रेन में, ये पूरा सर्किट जाता है और जा करके फिर वो मसल से पेन से हम पेपर पे लिखते हैं। और ये जो सर्किट होती है ना, ये हर लोगों के लिए यूनिक होती है, हर आइटम के लिए यूनिक होती है, ये जो न्यूरल पाथवेज होते हैं। इसीलिए हर राइटिंग अलग होती है, इसीलिए हर सिग्नेचर अलग होता है, और इसीलिए ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड का इम्प्रिंट निकल करके आता है। थोड़े हैवी वर्ड्स हो गए, लेकिन आपने कभी सोचा था कि इस सिग्नेचर के पीछे भी इतना बड़ा बॉडी का मसल, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस और न्यूरल पाथवेज, नर्वस सिस्टम, इतना कुछ काम करता है? हम तो सिर्फ उठाते हैं, उठा करके साइन कर देते हैं। Did you guys knew about this? Yes, no? भावेश, प्रेम, सुमित, उमा शंकर, प्लीज। So, so signature is also like your handwriting. हैंडराइटिंग का एक पार्ट ही तो हो गया ना, एंड इट इज एक्सप्रेशन ऑफ आवर सबकॉन्शियस एप्टीट्यूड्स, आवर सबकॉन्शियस टेस्ट। हम क्या चाहते हैं, हम कैसे हैं, हमारे थॉट्स कैसे हैं, हमारा नेचर कैसा है, हमारे प्रेफरेंसेस कैसे हैं। लाइक कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत क्विक डिसीजन ले लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो डिसीजन ले ही नहीं पाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो खुद पे भरोसा करते हैं, दूसरों पे भी भरोसा करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो ना खुद पे भरोसा करते हैं ना किसी और पे भरोसा करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो रिस्क टेकर होते हैं, कुछ होते हैं जो रिस्क अवर्स होते हैं, कुछ होते हैं जो अ, बहुत हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं आते, लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, लेकिन फिर भी वो हंसते हंसते उन चैलेंजेस को फेस करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनके साथ अच्छा भी हो रहा होता है ना, तो भी वो उस सिचुएशन में नेगेटिव निकाल करके नेगेटिव बोलना शुरू कर देते हैं। कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ किन्हीं को प्राइवेसी बहुत पसंद होती है, किन्हीं को प्राइवेसी का मतलब भी नहीं मालूम, वो सब चीज में घुस जाते हैं। तो देर आर सो मेनी ट्रेड्स फॉर अ पर्सन, फॉर अ ह्यूमन बीइंग, फॉर अ ह्यूमन माइंड, राइट। और यही सारे ट्रेड्स आप, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, यही सारे ट्रेड्स और इनसे भी और ज्यादा ट्रेड्स हम विद द हेल्प ऑफ हैंडराइटिंग, विद द हेल्प ऑफ सिग्नेचर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड द गुड पार्ट इज आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ हम इन चीजों को चेंज भी कर सकते हैं जैसा चेंजेस हमें चाहिए। लाइक कुछ लोग हैं जिनकी प्लानिंग अच्छी है, कुछ लोग हैं जिनकी एग्जीक्यूशन अच्छी है।
Now, from each one of you, I want one challenge. What emotionally and mentally you face while during your CA journey? आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो, या आप जॉब में हो, या आप जैसे भी आप क्या फेस कर रहे हो, वन चैलेंज आई वांट टू नो फ्रॉम ईच वन ऑफ यू, and I'll see whether I'll be able to help with the help of handwriting and signature or not. Tell me one mental emotional challenge. It can be anything. It can be low self esteem, it can be fear, it can be low risk appetite, it can be unable to communicate, it can be anything. कोई चैलेंज नहीं है, लाइफ एकदम सिंपल है, सब स्मूथली हो रहा है, तो फिर ये सेशन ही क्यों अटेंड कर रहे हो? कम ऑन गाइस, यू हैव टू स्पीक अप, नहीं तो मैं बंद कर रही हूँ सेशन अभी. कोई है भी? राशि तुम्हें बताओ. Fear of public speaking. फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग और और थोड़ा ऐसे घबरा जाते हैं, कोई भी नया सिनेरियो आता है तो. नया सिनेरियो आते तो घबरा Fear of जाते. the unknown. फियर ऑफ द अननोन और क्लैरिटी कंफ्यूजन, ये करे कि वो करे. ठीक है, तो ये इस तरीके की बहुत सारी जो हमारे माइंडसेट रिलेटेड इश्यूज होते हैं ना, ये सब कुछ विद द हेल्प ऑफ हैंडराइटिंग हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ हैंडराइटिंग हम फिक्स भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बोला. नाउ लेट्स कम टू व्हाट डज आवर सिग्नेचर मीन. सो जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, पता है पुराने टाइम पे होता था कि थंब इम्प्रेशन दिया जाता था पेपर पे, और वो जैसे ही थंब इम्प्रेशन दिया जाता था, व्हाट वी वर डूइंग, वी वर वैलिडेटिंग, वी वर ऑथेंटिकेटिंग कि दिस इज आवर आइडेंटिटी, एंड जो भी इस पेपर में, जो भी इस जगह पे है, वो सही है, ट्रू टू आवर नॉलेज. सो जो हमारा सिग्नेचर है ना, वो सिग्नेचर इज ऑल्सो नॉट जस्ट अ प्ले ऑफ वर्ड्स, या जैसे सिर्फ लिख दिया रूपी जैन साइन कर दिया. इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर पब्लिक सेल्फ इमेज. पब्लिक सेल्फ इमेज क्या हुआ? हाउ वी आर बिहेविंग इन पब्लिक, हाउ वी आर एक्टिंग टुवर्ड्स अराउंड व्हेन वी आर अराउंड अदर पीपल. अदर पीपल मतलब घर पे एक कंफर्ट जोन होता है, हमारे मम्मी पापा, हमारे सिबलिंग्स, हमारे और जो नोन लोग होते हैं, वो कंफर्ट जोन हो गया. लेकिन हाउ वी आर बिहेविंग इन पब्लिक, जो और लोग होते हैं, what we think ourselves in public, how we want कि लोग हमें कैसे देखें, how we want कि लोग हमें कैसे परसीव करें, है ना. लाइक देयर आर पीपल जो घर में तो शेर बने घूमते हैं, और बाहर जाते ही भीगी बिल्ली बन जाते हैं. लाइक देयर आर पीपल जो घर में तो चुपचाप चुपचाप रहते हैं, लेकिन बाहर जाते ही शेर बन जाते हैं. दोनों दोनों केसेस हो सकता है. देन देयर आर पीपल जो घर में तो बहुत बातें करते हैं, लेकिन बाहर जाके चुप से हो जाते हैं. सो ये जो डिफरेंस है ना, कि हाउ दे आर बिहेविंग इन कंफर्ट जोन वर्सेस हाउ दे आर बिहेविंग आउटसाइड, यही डिफरेंस पता चलता है एक हमारे हैंडराइटिंग से, और दूसरा हमारे सिग्नेचर से. योर हैंडराइटिंग इज योर पर्सनल लाइफ, कि आप कैसे हो एग्जैक्टली, एंड योर सिग्नेचर इज योर पब्लिक लाइफ, कि आप बाहर कैसे बिहेव कर रहे हो. सो कुछ लोग हैं कि जिनको घर में तो कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, लेकिन बाहर जाकर के वो कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं. देर इज सम फेयर, देर इज सम डर अबाउट रिगार्डिंग दैट, है ना. एंड जितना ज्यादा हैंडराइटिंग में और सिग्नेचर में डिफरेंस होगा, उतनी ज्यादा उनकी लाइफ में भी डिफरेंस होगी. तो जैसी हैंडराइटिंग होनी चाहिए, जैसी हैंडराइटिंग है वैसा सही अगर सिग्नेचर है, उसी फॉर्मेट में डिजाइन किया है, तब तो वो गैप जो है वो कम होगा. देन यू डोंट हैव टू प्रिटेंड, आप जैसे हो आप वैसा ही दिखा रहे हो, वर्सेस आप क्या हैंडराइटिंग कुछ और है, लेकिन आपने सिग्नेचर कुछ और डिजाइन कर लिए, तो इसका मतलब आप जो नहीं हो, आप वो दिखाने की कोशिश कर रहे हो, राइट. सो अभी आप क्विकली क्या करोगे, पेन और पेपर लो, 3 to 4 सेंटेंसेस लिखो, 3 to 4 सेंटेंसेस लिख करके अपना सिग्नेचर डालो क्विकली. आई विल गिव यू 2 minutes.
3 to 4 सेंटेंसेस लिख के आप अपना सिग्नेचर डालो। Rashi, once you will be done, let me know, huh? Because I can only see you. Done? Done. Okay. So, we'll quickly get into जो आपने सिग्नेचर किया उस पे, फिर हम उसको माइंड से रिलेट करके आई टेल यू। सो एक जो सिग्नेचर होता है ना, उसमें एक होती है लेजिबिलिटी और एक होती है इलेजिबिलिटी। सो जब हम सिग्नेचर फॉर्म किए थे, तो फॉर्म करते टाइम क्या करते हैं, जनरली हम कैसे सिग्नेचर फॉर्म करते हैं कि हमारे पेरेंट्स बोल देते हैं कि तुमको ऐसे ही करना पड़ेगा, एकदम सिंपल रखो, या कभी हम लेफ्ट देखते हैं, राइट देखते हैं, और जिसका हमको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है हम उसका कॉपी कर लेते हैं, या फॉर एग्जाम्पल हम किसी से इंस्पायर्ड हुए हैं, कोई हमारे फेवरेट फिगर है जिनको हम पसंद करते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी के लिए शाहरुख खान हो सकता है, किसी के लिए विराट कोहली हो सकता है, एनीवन, किसी के लिए कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है, तो हम उन वो जैसा सिग्नेचर करते हैं ना, हम वैसा कॉपी कर लेते हैं। मोर और लेस यही तरीका है। कोई और कोई तरीके से सिग्नेचर अपना डिजाइन किया था तो बताओ, अदरवाइज दीज आर द थिंग जनरली प्ले रोल की, हाँ इस तरीके से हमने अपना सिग्नेचर फॉर्म किया था, राइट। जब हम कॉपी कर रहे हैं किसी और का, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसके स्ट्रेंथ और उसके वीकनेस को कॉपी कर रहे हैं, रादर देन हम अपने स्ट्रेंथ और अपने वीकनेसेस को एक देखे बिना, हम अपना तो देख नहीं रहे, हम उनके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को कॉपी कर रहे हैं। नाउ से फॉर एग्जांपल, अभी सचिन तेंदुलकर को बोला जाए कि यू सिंग लाइक लता मंगेशकर, एंड लता मंगेशकर को बोला जाए यू प्ले लाइक सचिन तेंदुलकर, इज इट पॉसिबल? सो व्हेन वी आर कॉपिंग, वी आर डूइंग द सेम ओनली। आपको नहीं पता कि आप जिनकी कॉपी कर रहे हो उनके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है, उनके ट्रेड्स क्या है, वी आर जस्ट कॉपिंग वो जो स्ट्रोक्स और पैटर्न्स है उसको अननोइंगली, कि हम उनके स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को भी कॉपी कर रहे हैं। अब वो कौन सा चीज कैसा है हमें नहीं पता। सो द फर्स्ट थिंग इज कि कभी भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वी शुड डिजाइन आवर सिग्नेचर माइंडफुली, और जब हम माइंडफुली सिग्नेचर डिजाइन करते हैं, देन वी आर यूजिंग आवर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, राइट। नेक्स्ट इज, जितनी सिंपल सिग्नेचर होगी, जितनी सिंपल सिग्नेचर होगी उतनी सिंपल लाइफ होगी, और जितनी कॉम्प्लिकेटेड सिग्नेचर होगी उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड लाइफ होगी। एवरी डॉट विच वी आर पुटिंग ऑन पेपर विथ अ पेन इज अ थॉट। और आप लोगों को पता है हमारे दिन भर में कितने थॉट्स आते हैं? एनी गेसेस, एनी नंबर, कितने थॉट्स आते हैं दिन भर में? हाउ मेनी थॉट्स? मोर देन 100? 100 इज वेरी लेस नंबर। 100 थॉट्स तो आपको पिछले 1 घंटे में, आधे घंटे में आ गए होंगे। 70,000, राइट। अप्रोक्स 70,000। पहले 60,000 था, अभी वो बढ़ करके 70-80, क्योंकि क्या हो गया ना, अभी हमारा रील्स का जमाना आ गया ना, तो थॉट्स भी फट 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 चेंज होते रहते हैं। सो प्रेम इज राइट कि 70,000 थॉट्स आते हैं दिन भर में। अब वो थॉट्स कैसे है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? मिक्स है, बोथ है। अब कोई पॉजिटिव पर्सन है तो उसके पॉजिटिव थॉट्स ज्यादा होंगे, लेकिन नेगेटिव तो भी साथ में होंगे। कुछ नेगेटिव पर्सन है तो उनके नेगेटिव थॉट्स ज्यादा होंगे, लेकिन कुछ साथ में
पॉजिटिव थॉट्स भी होंगे, राइट। नाउ यही जो थॉट्स है, यही थॉट्स हमारे पेन से पेपर पे आते हैं, इन्हीं थॉट्स को हम पकड़ सकते हैं। नाउ अगर आप सिग्नेचर को कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो, यूं यूं घुमा करके ऐसे ऐसे कुछ कर दिया, तो आपने क्या किया, आपने अपने नंबर ऑफ थॉट्स को और बढ़ा दिया। और जितना आप सिंपल रखोगे उतना आपके नंबर ऑफ थॉट्स भी सिंपल रहेंगे। क्लियर? सो योर सिग्नेचर शुड बी एज सिंपल एज पॉसिबल। नाउ अभी कोई बोलेगा कि जित अगर सिंपल सिग्नेचर रखेंगे तो कॉपी हो जाएगा। दिस इज अ कॉमन मिथ, एंड दिस इज अ मिथ एक्चुअली, क्योंकि सिग्नेचर में या हैंडराइटिंग में इतने सारे एलिमेंट्स होते हैं, इतने सारे एलिमेंट्स होते हैं ना। आपका अपर जोन कितना है, आपका लोअर जोन कितना है, आपने क्रॉस बार्स कहाँ पे दिए, आपकी स्पेसिंग कितनी है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका प्रेशर कितना है। प्रेशर, कोई भी चीज कॉपी हो ही नहीं सकती है। इट इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई कि कौन सा फेक सिग्नेचर है और कौन सा ट्रू सिग्नेचर है। एंड इनफैक्ट आपके खुद के भी, आप अगर 5-10 सिग्नेचर करोगे ना एक पेज में, लाइन से करते जाओगे, आपके खुद के 2 सिग्नेचर आपको सेम नहीं मिलेंगे। से फॉर एग्जाम्पल हम सब कैलकाटा में हैं, हमें यहाँ से जाना है फॉर एग्जाम्पल बॉम्बे। सेम गाड़ी रहेगी, सेम रास्ता रहेगा, सेम ड्राइवर रहेगा, सेम रोड की कंडीशन रहेगी। क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि आप एकदम एग्जैक्ट टाइम पे आप कैलकाटा से बॉम्बे जा सकते हो? कुछ डिफरेंसेस तो रहेंगे ही ना। वैसे ही वैसे ही सिग्नेचर में भी आपके भी खुद के 2 सिग्नेचर कभी डिक्टो सेम होती नहीं है, कुछ डिफरेंसेस रहते ही रहते हैं। क्योंकि आपके इमोशनल कंडीशन डिफर करती है, आपकी मेंटल कंडीशन डिफर करती है, आपके फिजिकल कंडीशन डिफर करती है, आपका माइंडसेट डिफर करता है, बहुत कुछ डिफर करता है। सो जो ये मिथ है, ये मिथ ही है कि अगर मैं सिंपल सिग्नेचर रखूंगा तो लोग मेरी सिग्नेचर को कॉपी कर लेंगे। जिनको कॉपी करना होगा वो कॉम्प्लिकेटेड को भी कॉपी कर लेंगे, और जिनको नहीं करना होगा वो सिंपल को भी नहीं कॉपी कर पाएंगे। एंड सिंपल सिग्नेचर्स आर मोर डिफिकल्ट टू कॉपी। तो अब आपको डिसाइड करना है कि हमको कॉपी, एंड कॉपी करना से डरना इज अगेन, जो अभी राशि बोल रही थी, दैट इज एन अननोन फियर कि कॉपी हो जाएगा, क्या ले लेगा, क्या निकाल लेगा। आज नरेंद्र मोदी जी का सिग्नेचर है, या कोई भी, आप किसी भी बड़े फिल्म स्टार या आप किसी पॉलिटिशियन का सिग्नेचर उठा करके देख लो, आपको गूगल में मिल जाएगा। आप कॉपी कर लोगे? क्या कर लोगे आप उसका? कुछ कर सकते हैं हम उसका? और क्या ले लेंगे हम उनसे? ऐसे भी तो डिजिटल का जमाना है, आधे से ज्यादा चीजें डिजिटल हो गई है। तो बट माइंडसेट अभी भी वही है। सो जितनी सिंपल सिग्नेचर उतनी सिंपल लाइफ, जितनी कॉम्प्लिकेटेड सिग्नेचर उतनी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ। नाउ यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू फॉर योरसेल्फ, सिंपल लाइफ और कॉम्प्लिकेटेड लाइफ, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जितनी लेजिबल सिग्नेचर होगी, लेजिबल का क्या मतलब हुआ, कोई भी 5 लोग आपका नाम, आपका सिग्नेचर देख के आपका नाम बता सके कि ये नाम है। जितनी लेजिबल सिग्नेचर होगी उतनी लाइफ में क्लैरिटी रहेगी, और जितनी इलेजिबल सिग्नेचर होगी उतना आप कंफ्यूजन्स को इनवाइट करोगे, एंड यू नेवर नो कि कौन सा स्ट्रोक का क्या मतलब निकल करके आता है। हम क्या करते हैं, हम उससे डिलेज इनवाइट करते हैं, हम उनसे इनडिसाइसिवनेस इनवाइट करते हैं, अननेसेसरी स्ट्रोक्स डाल करके हम उससे कॉम्प्लिकेशंस इनवाइट करते हैं अपने लाइफ में। लाइक फॉर एग्जांपल कोई आदमी है, उसको क्रिएटिविटी उसकी फील्ड नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, हमारे क्रिएटिविटी हमारे फील्ड में ही नहीं है, लेकिन अगर हम कुछ कर देंगे कॉम्प्लिकेशन से, हम उसको इनवाइट करेंगे जिसको हम अपने लाइफ में यूज नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे व्हाट वी नीड लॉजिकल माइंडसेट, वी नीड कैलकुलेटिव माइंडसेट, वी नीड स्टैटिस्टिक्स माइंडसेट, है ना। सो जितनी लेजिबल सिग्नेचर होगी उतना उतना अच्छा होगा। एंड लेजिबिलिटी ऑल्सो इज रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, उतना डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा कि आप जो दुनिया को कहना चाहते हो वो लोग समझ पाएंगे। मेनी टाइम्स वी क्लोज आवर सेल्फ ना। आज ही मैं एक जन से मिली एंड ही वाज सेइंग कि मैं ना जो बताना चाहता हूँ ना लोग समझते ही नहीं है, इसलिए मैंने बताना बंद कर दिया। तो वो जो आप नहीं बता रहे हो, वो जो आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, आप प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, वो कहाँ से आ रहा है? वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से आ रहा है। एंड देन एक प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए आपने दूसरी प्रॉब्लम को इनवाइट कर ली, अन एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, राइट।
नाउ नेक्स्ट पार्ट इज सिग्नेचर असेंडिंग होना चाहिए। असेंडिंग मतलब जैसे एक फ्लाइट टेक ऑफ करता है ना, फ्लाइट टेक ऑफ करता है तो वो ऐसे रहता है ना, ऐसे तो नहीं रहता है, तो इतनी ज्यादा असेंडिंग भी नहीं होगी, समवेयर बिटवीन 20 डिग्री टू 30 डिग्री, एक फ्लाइट टेकिंग ऑफ की तरह ना। अगर मुझे अगेन आई विल टेक द एग्जांपल, कलकत्ता से बॉम्बे जाना है, विच इज द फास्टेस्ट वे, फ्लाइट से जाना इज द फास्टेस्ट वे। सो और आप ट्रेन से भी जा सकते हो, आप पैदल भी जा सकते हो, आप गाड़ी से भी जा सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली यू विल चूज द फास्टेस्ट वे टू गो देयर, राइट ना। तो ये जो है, ये जो असेंशन इन द सिग्नेचर, दैट विल गिव यू पॉजिटिविटी इन लाइफ, दैट विल गिव यू ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, दैट विल गिव यू कि हाँ चैलेंजेस है भी तो हम उन चैलेंजेस को बहुत हैप्पी हैप्पी फेस कर रहे हैं। एनी क्वेश्चन सो फार? हमने अभी तक 3 पॉइंट कवर किया है। हमने सिंप्लिसिटी कवर की है, हमने लेजिबिलिटी कवर की है, हमने असेंडिंग कवर किया है। अच्छा, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम डिसेंडिंग तो ना हो, आप भले ही स्ट्रेट रख लो लेकिन डिसेंडिंग तो ना हो, प्लीज कीप अ चेक, बिकॉज डिसेंडिंग विल मेक यू सैड, डिसेंडिंग विल मेक यू पेसिमिस्टिक, डिसेंडिंग विल मेक यू हर सिचुएशन में नेगेटिव। वो कुछ लोग होते हैं ना, हर बात पे नेगेटिव बोला, हर बात पे नेगेटिव बोला, वो वैसा बन जाता है। कोई क्वेश्चन अभी तक? कोई क्वेश्चन नहीं है? ये लोग सुन भी रहे, मुझे नहीं मालूम। I'll close the session early only. I'll give 2-3 more points and I'll close it. मैम सुन तो रहे होंगे, आई डोंट थिंक कोई क्वेश्चन है अभी तक। अच्छा, नेक्स्ट आता है, आप में से किसी के सिग्नेचर में डॉट है? डॉट लगाते हो आप लोग? हाँ हाँ, कहाँ लगाते हो? आई के ऊपर। अच्छा, गुड गुड वन। आई के ऊपर डॉट इज अ मैंडेटरी एक्सेसरी, ठीक है, मतलब वो एक एक्सेसरी की तरह यूज होता है, आई के ऊपर डॉट या जे के ऊपर डॉट। लेकिन उसके अलावा जैसे अभी राशि ने अपना नाम लिखा है CA डॉट राशि सोंथालिया, या मेरे नाम के आगे भी CA डॉट रूपी जैन लिखा हुआ है। सो ये जो डॉट है ना, ये एक वॉल की तरह काम करता है। अगर ये सिग्नेचर में है, जैसे यहाँ पे तो इट्स ओके, यहाँ पे तो नाम की तरह लिखा है, ऑल्दो आई टू अवॉइड यहाँ पे भी, तो लेकिन सिग्नेचर में डॉट कहीं पे भी, से फॉर एग्जांपल बहुत लोग होते हैं बी डॉट मिश्रा, फॉर एग्जांपल भावेश मिश्रा लिखे हैं तो बी डॉट मिश्रा, या बी डॉट के डॉट मिश्रा, तो डॉट डॉट लगाते हैं ना। सो दीज डॉट्स एक्ट एज अ वॉल बिटवीन यू एंड योर फैमिली। रूपी क्या है? रूपी इज मी पूरा एंड नेम के जैन क्या बाद है? है ना? पूरा नेम के बाद। नाउ फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई एक सेंटेंस एंड करना है तो आप सेंटेंस एंड कैसे करते हो? डॉट लगा करके। सो अगर आप पूरा नाम के बाद डॉट लगा रहे हो, दैट व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स आप अपने आप को एंड कर रहे हो। सो डू वी वांट टू एंड आवर सेल्फ और डू वी वांट टू कंटिन्यू आवर सेल्फ? To continue ourselves. So it's not a good idea to have a dot anywhere in the signature. I dot and J dot are mandatory accessories. मैं उन डॉट्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं डॉट की बात कर रही हूँ। बी डॉट के डॉट मिश्रा, या बी डॉट मिश्रा, या बी मिश्रा डॉट, या कहीं पे भी, और कहीं कोई लोग तो ऊपर लगा देते हैं, कोई लोग नीचे लगा देते हैं। I have a habit of putting it after Sonthalia. So it's not a good idea. Please change it immediately. And that will not make any difference also. किसी को पता भी नहीं Right. चलेगा when you will remove that. ठीक है। एंड ऑल्सो मेनी टाइम्स इट हैपेंस ना, कुछ लोग होते हैं जो बहुत रिजिड हो जाते हैं कि बस मेरा जो ओपिनियन है वही राइट ओपिनियन है, आई एम नॉट विलिंग टू लिसन टू अदर पीपल व्हाट दे हैव टू से, या बस बोल दिया ना, कह दिया, बस मैंने कह दिया। सो वो भी आ जाता है साथ में विद अ डॉट, देयर कम्स अ रिजिडिटी। नाउ जब ये रिजिडिटी आती है तो इस रिजिडिटी के साथ में क्या आता है? सम रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन इश्यूज,
क्योंकि फिर लोग उसको सुनना नहीं चाहते हैं कि यार ये तो हमेशा अपना ही जिद्दी चलाती है, ये तो जो बोलेगी अपने ही मन का करेगी, वैसा भी आ जाता है। ठीक है। नाउ एनीवन हु हैज अंडरलाइन इन देयर सिग्नेचर, सिग्नेचर में अंडरलाइन कोई नहीं करता? सो अंडरलाइन is like a support, is like a confidence, is like a platform। और ये अंडरलाइन होना बहुत अच्छा होता है आपके सिग्नेचर में। जिन किसी के भी हैंड सिग्नेचर में अंडरलाइन है ना, दे दे फील मोर कॉन्फिडेंट वर्सेस जिनके सिग्नेचर में अंडरलाइन नहीं है। नाउ अंडरलाइन करने का ना तरीका होता है, आई विल शो यू माय वाइट स्क्रीन। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? दिख रहा है? प्लीज कंफर्म मी ना, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है हाँ कि हाँ नहीं? दिख रहा है। दिख रहा है ना? हाँ। सो से फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा रूपी, एक मिनट, दिस सम प्रॉब्लम, बाय द वे दिस इज नॉट माय सिग्नेचर। हाँ, आई एम अनेबल टू यूज दिस व्हाइट बोर्ड, आई डोंट नो व्हाई। राशि, आर यू ड्राइंग? Is this fine or should I draw something else? नहीं, आई थिंक एक बार हम लोग नॉर्मल वापस स्क्रीन में जाते हैं ना। हाँ sure. लेट मी ट्राई वंस अगेन। थोड़ा मैं ऐसे ही बता देती हूँ। सो जब हम रूपी लिख रहे हैं और जैन लिख रहे हैं, मेरे मेरे नाम में पी एक लोअर जोन लेटर की तरह आता है, ठीक है, जो कि राशि के नाम में नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल भावेश के नाम पे भी नहीं आ रहा है, ओ वाह, किसी के प्रेम के नाम पे भी नहीं आ रहा है, उमा शंकर चैटर्जी के नाम में आ रहा है JEE। जे 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 नीचे की तरफ जा रहा है, पी नीचे की तरफ जा रहा है। तो हम कभी भी इन लोअर जोन के लेटर्स को कट नहीं करेंगे। व्हाट वी विल डू इज, जैसे फॉर एग्जांपल माय नेम RUPIJAIN, तो मैं RU पे जाऊंगी, फिर स्टॉप करूंगी, फिर पी के नीचे से वापस उसको करूंगी। एंड जो हमारा अंडरलाइन होता है ना, वो रूपी जैन के बहुत बगल में होगा, इट विल नॉट बी टचिंग ऑल्सो, और वो बहुत बगल में होगा। देन इट विल गिव यू सपोर्ट, इट विल गिव यू प्लेटफॉर्म, जैसा कि मैंने बोला, इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस। एंड इट विल स्टार्ट फ्रॉम R के पहले और एंड इट विल एंड N के बाद में, पूरा रूपी जैन को कवर करेगा। और राशि संथाली है तो R से पहले A के लास्ट तक। एंड शी कैन हैव वन फुल सिंगल स्ट्रोक, क्योंकि देयर इज नो लोअर जोन लेटर, तो पूरा एक सिंगल स्ट्रोक की तरह आएगा। और जैसे हमारा नाम असेंडिंग में जा रहा है इस तरीके से, वैसे ही वो लाइन भी असेंडिंग में ही जाएगी। क्लियर है? अब कुछ लोग होंगे, वो क्या करेंगे, नाम तो ऊपर दे देते हैं, सिग्नेचर अंडरलाइन सीधा कर देते हैं, देन देयर इज अ गैप बिटवीन नेम एंड बिटवीन द प्लेटफॉर्म। तो उस प्लेटफॉर्म का हम करें क्या? कुछ लोग होते हैं जो डबल अंडरलाइन कर देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अंडरलाइन बैक टू फ्रंट कर देते हैं, ऐसे पीछे की तरफ। सो दीज ऑल आर बिग नो नो इन सिग्नेचर।
ठीक है. नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट. द लास्ट पार्ट इज, आप कभी भी अपना सिग्नेचर में शॉर्टकट्स को नहीं यूज करोगे. शॉर्टकट को नहीं यूज करने का मतलब, ना इफ आई राइट RJ ओनली, दिस इज अ शॉर्टकट. अब आर जैन लिखना है या रूपी जैन लिखना है विल डिपेंड कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल मेरे को खुद को लेके कैसा है. अगर मेरा खुद का कॉन्फिडेंस लेवल कम है देन आई राइट फुल रूपी जैन. अगर मुझे लगता नहीं आई एम कॉन्फिडेंट एनफ टू मैनेज माई सेल्फ, देन आई कैन राइट आर जैन ऑल्सो. दैट डिपेंड, दैट इज अ पर्सनल चॉइस, देर इज नो जनरल स्टेटमेंट इन दिस. लेकिन RJ इज अ बिग नो नो, बिकॉज सक्सेस हैज नो शॉर्टकट, सो सिग्नेचर शुड ऑल्सो हैव नो शॉर्टकट्स. अब आप बोलोगे हमको बहुत सारे पेपर साइन करने होते हैं, प्लीज सारे पेपर में फुल साइन करो. माई एडवाइस टू ऑल ऑफ. ठीक है. सो दीज हमने सिग्नेचर के कुछ डूज एंड डोंट समझे कि हमें क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है. जैसे हमने लेजिबिलिटी इलेजिबिलिटी समझ लिया, हमने क्लैरिटी और कॉम्प्लिकेशंस का समझा, हमने असेंडिंग डिसेंडिंग समझा, हमने डॉट्स का मतलब समझा, हमने अंडरलाइन का मतलब समझा. हाय अशोक, हाय प्रदीप जी, वी आर about to close the session. It was from 4 to 5. Okay. So any questions so far? कुछ भी क्वेश्चन है? नो क्वेश्चन. वेरी गुड. सो हमारा जो सेकंड पार्ट है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, हम उसको भी थोड़ा सा टच कर लेते हैं विद द सिग्नेचर पार्ट जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी. सो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, इसको हम जैसी इंफॉर्मेशन देते हैं, इसमें हम जैसी फाइल्स क्रिएट करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड उसी के हिसाब से रिएक्ट करता है. से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि आई वेंट टू कश्मीर, एंड कश्मीर में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा होटल है, वहाँ के सारे स्टाफ बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे वेदर बहुत अच्छा है, वहाँ पे खाना बहुत अच्छा है, वहाँ पे ये अच्छा है वो अच्छा है. दिस इज द इंफॉर्मेशन विच आई हैव फीडेड इन योर माइंड. तो अब जब आप कभी कश्मीर जाओगे तो आपको वो सारी माइंड प्ले होगी, अरे रूपी ने बोला था कि है ना, ये यहाँ पे कश्मीर में ये वाला होटल मिस्ट हीवन होटल ये बहुत अच्छा है, ऐसा है वैसा है, खाने बहुत अच्छे हैं, ये है वो है. और अगर वहाँ नहीं भी अच्छा होगा ना, तो आप वहाँ पे अच्छे ढूंढने की कोशिश करोगे, आज हो गया होगा, ऐसा हो गया होगा. और यही अगर मैं बोलूँ कि यार वहाँ पे एकदम बेकार स्टाफ है, एकदम बेकार वेदर था, हॉस्पिटैलिटी तो थी नहीं, खाना भी एकदम वो था, अच्छा नहीं था, व्हाट आई हैव फीडेड, अगेन इन्फॉर्मेशन. अब आप जाओ, आप किसी और से पूछोगे भी नहीं, और आप बोलोगे यार उसने बोला था तो नहीं जाना है. दिस इज हाउ आवर सबकॉन्शियस माइंड वर्क. आप जैसा इंफॉर्मेशन देते हो वैसा ही वो आता है. नाउ वी हैव टू चेक व्हाट इंफॉर्मेशन ऑन डे टू डे बेसिस वी आर गिविंग टू आवर सेल्फ. वी हैव टू चेक दैट कि वो इंफॉर्मेशन पॉजिटिव है, वो सजेशंस पॉजिटिव है या वो सजेशंस नेगेटिव है. और जैसा हमारा एनवायरनमेंट होता है, हम वैसा ही सजेशन. लाइक फॉर एग्जांपल सीएज में मैं बहुत जन को देखती हूँ, काम ही नहीं मिल रहा है, काम आता ही नहीं है, कोई और ले जाता है, लोग ये कर लेते हैं. तो दीज आर व्हाट, दीज आर ऑल नेगेटिव इंफॉर्मेशन विच वी आर फीडिंग इन आवर माइंड. और फिर माइंड वैसा ही होता है और वैसी ही चीजों को अट्रैक्ट करता है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैजिक, ये सब कुछ जो हम पढ़ते हैं ना, इन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करता है फिर. ठीक है. सो योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब. आपकी जैसी वाइब खुद की होगी, आप जिस इमोशंस में होंगे, अगर आप फेयर वाले इमोशंस में हैं, आप फेयर की चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो, आपको सारे सिचुएशंस ऐसे मिलेंगे जो आपको और डराते जाएंगे. आप कॉन्फिडेंट हो तो आप कॉन्फिडेंट वाले सिचुएशंस को अट्रैक्ट कर रहे हो, कि आपको सिचुएशंस वैसे मिलेंगे जहां आपको और कॉन्फिडेंस शो करने का मौका मिलेगा. आप रिस्क टेकर नहीं हो तो आपको सारे सिचुएशन ऐसे मिलेंगे जहां आपको रिस्क लेना होगा और आप नहीं ले पा रहे हो. सो जैसे आपके इमोशंस होंगे वैसे ही आप लोगों को अट्रैक्ट और सिचुएशंस को अट्रैक्ट करना शुरू करोगे. सो व्हेन वी चेंज आवर हैंड राइटिंग, व्हेन वी चेंज आवर सिग्नेचर, सो हम क्या कर रहे हैं, हम सबकॉन्शियसली अपने आप को चेंज कर रहे हैं. एंड इट्स अ ब्यूटीफुल चेंज जो आप खुद को फील करते हुए जाओगे कि अच्छा पहले मैं ऐसी थी, अभी मैं ऐसे हूँ. ये मैं हैंड राइटिंग से ये आइडेंटिफाई किया मैंने कि अच्छा मेरे ये नेचर है. राइट. सिंस
All of you have no question. I would like to close the session now because last के 10 minutes मैंने question answer के लिए रखा था. If anybody has any questions, they can just type it in the chat box or they can unmute themselves because I've already given the permission to speak. I don't think है. We'll close the session. I would like to, on behalf of everyone present here, I would like to extend a heartfelt gratitude to Ms. Ruby Jain for sharing such a profound insight on how our subconscious mind influences our actions, thoughts, and even the way we express ourselves through something as simple yet powerful as our signature. Your words have truly inspired us to look within us and understand the deeper connection between our mind and identity. So once again, I would like to thank Ms. Ruby Jain for this thought-provoking and motivational session. Thank you, ma'am. Thank you so much. Bye bye.